hello everyone. We are going to start economics chapter factor of production for class 10 ICSE demo class. The first and foremost thing which we need to understand is whenever in an economy, whatever it is, okay, in an economy, there are two sort of markets which I'm going to discuss in this particular video. I'm going to really address the agenda, what we are going to supposed to do in the video. And of course, there are few things which we need to understand. While teaching national income to class 12, people in class 10 right now don't know things about GDP and everything, right? You don't know. You have only heard about things which is going down, 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 down. So अभी के टाइम पे आपको रियली नहीं पता है कि जीडीपी क्या है बिकॉज इन क्लास 9 इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है आपके क्लास में एंड आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस पढ़े हैं ऑफ डिफरेंट प्रोफेसर्स लाइक एडम स्मिथ एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो भी आप पढ़े हो अभी तक मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कुछ डेफिनेशन पढ़े हो आप एंड वेरियस थीसिस एंड वेरियस डेफिनेशंस यू हैव लर्नड राइट नाउ इन क्लास 9. Class 10 being a practical approach and more wider approach where you study about demand, supply, production mechanism, factors of production, market morphology, then you study about, different types of market, equilibriums, and you go on and on and on. Then you go for revenue markets and everything. And these are the things which keep your head at point. Because अभी तक आपने सिर्फ definition पढ़ा and suddenly you come across so many definitions, so many different various concepts, especially demand supply का वो demand curve, supply curve, law of demand, law of supply. You get confused among all those things and it's pretty normal, okay? It's okay. Now, what I'm gonna start is because this is the very month end, like not month end, year end, and being in a fresh class makes no sense. But of course, because of this pandemic and everything, we are very slow. And of course, we are gonna cover things up. It's okay if we focus on the finals and not the half yearly and other stuff. I'm not saying that please exam do, but of course focus on the final exams. आपके boards पे ज़्यादा focus करने की आपको ज़रूरत है. So thinking कि कहीं पे भी syllabus end up हो गया है, शुरू हो गया है, it's very, a very, I would say, not good right now because ठीक है अभी के time पे you can just go through it. Late भी शुरू करते हो तो it's okay अभी. इसके लिए मैंने fresh batch फिर से start किया है. Now, telling you something about factors of production is what my concern is today. Now, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है हम लोग शुरू से सुनते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ ये 4 जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे भी और जो आप सुनते भी है अपने बुक्स में पढ़ते भी है बचपन से इनका इम्प्लीमेंटेशन है का आप इसको अप्लाई कहाँ करते हो एप्लीकेशन कहाँ है इसका राइट. हाउ डू वी नो कि इन चारों चीज को कनेक्ट करके क्या क्या चीजें बन सकती है. हाउ डू वी नो कि ये चारों ही चीजें हमारी इकोनॉमी में कैसे रन आउट करती है. हाउ डू वी नो कि इन चारों में ही हम खुद को बिलोंग करते हैं. हाउ डू वी नो थिंग्स. अब इस चैप्टर में आप इंडिविजुअली चारों के बारे में बड़े बड़े डेफिनेशंस के साथ अलग अलग इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और एवरी सिंगल थिंग यू गोना स्टडी in this chapter. Now people have two sort of books which I've already discussed with my batch. एक book है जिसका चैप्टर का नाम ही है प्रोडक्शन मैकेनिज्म जो कि मोस्ट ऑफ द कैलकाटा के पब्लिशर्स मतलब कैलकाटा के बच्चे जो बुक फॉलो करते हैं जिसमें प्रोडक्शन मैकेनिज्म एक चैप्टर है एंड देन लैंड अलग चैप्टर लेबर अलग so on and so forth with capital and entrepreneurship. But in a few books you may find factors of production chapter का नाम ही होगा उसमें प्रोडक्शन मैकेनिज्म एक पार्ट होगा एंड बाकी के 4 रिस्पेक्टिव कंसेप्ट्स के लिए डिफरेंट कॉलम्स होंगे बट इन द सेम चैप्टर. एंड जिस चीज को आप फॉलो करते हो दोनों भी सही है किसी चीज में कोई गलती नहीं. इस चैप्टर में बस इतना समझ लेंगे हम दैट इन चारों के बारे में विल स्टडी a detailed summary, okay? But in this class we are not going to cover this up. I will tell you what we are going to cover. देखो इससे पहले मैं बस बता दूं एजेंडा क्या है इस क्लास का कि आफ्टर दिस क्लास क्या चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. बिफोर दैट आई रियली वांट टू आस्क यू पीपल टू टेक योर बुक्स
whatever books you are following, whichever books, respective books you are following, keep it in front of you. Keep a pencil in front of you for writing running notes, a notepad or your copy, whatever you have, and your stationaries. Now, whatever things I'm gonna tell you, everything you cannot write, but the things which you really feel it's worth writing, you should write that. With any examples I tell about, कुछ भी मैं बोलूं, कोई भी एग्जांपल्स मैं बोलूं, क्योंकि वो आपको बाद में काम आएगा. देन अगेन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे देखोगे, आपको इसका आप स्नैप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट, ओके, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में आपको काम आएगा. ओके, आई वोंट sue you for this. अब इस वीडियो के बाद या इस क्लास के बाद आपको क्या क्या चीजें आ जाएंगी. आपको प्रोडक्शन मैकेनिज्म का मतलब समझ आ जाएगा, आपको इनपुट या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब समझ आ जाएगा, आपको यूटिलिटी क्या होता है, कैसे उसके टाइप्स है, और विद डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट यूटिलिटीज, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. ओके, नाउ उससे पहले जो एजेंडा में नहीं लिखा है, जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, it's about market. Ma'am, we know what markets are. I know you know what markets are, but there are two different types of market in an economy, और economics में आप इसके बारे में पढ़ते हो. वो दो different market होता क्या है? The first one being the factor market and the second one being the product market. आपके स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा एक कलरफुल चार्ट with green and purple lines. अब उस लाइंस का, उन लाइंस का मतलब क्या है? I'm gonna explain you that first. Okay. Now you can see here factor market and you can see here product market, right? फैक्टर मार्केट क्या होता है और प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है, पहले इसको समझेंगे. फ्यूचर में आप अगर कभी भी अबाउट नेशनल इनकम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा नेशनल इनकम है वो दो सेट्स ऑफ डेफिनेशन में है, गुड्स मार्केट और फैक्टर मार्केट में डिवाइडेड. यानी इसकी दो डेफिनेशन है, मीनिंग सेम आता है क्योंकि नेशनल इनकम सेम तरीके से निकलता है. फैक्टर मार्केट वो मार्केट है जहां से इंडस्ट्रीज या बिजनेस ओके अपने इनपुट्स लेते हैं. इनपुट्स कौन से? अभी अभी आपने पढ़ा है इनपुट्स के बारे में, विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, फिर किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ये चारों भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. नाउ फैक्टर मार्केट वही चीजें प्रोवाइड करता है बिजनेस को, और ये चारों भी चीजें मिलती कहाँ से हैं? एनी आइडिया? फैक्टर मार्केट से मिल जाएंगी. ओके, नाउ ये चारों भी चीजें आपको फैक्टर मार्केट से मिल जाएंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. बिजनेस जब इन फैक्टर मार्केट में जाता है तो इन फैक्टर्स को कुछ देता है इन रिटर्न, जो जिसको कंसिडरेशन बोलते हैं. वो कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है, एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स हो सकती है. वेजेस किसे देते हैं हम? लेबरर्स को. इंटरेस्ट किसे देते हैं हम? कैपिटल ओनर्स को. एंड प्रॉफिट्स किसे मिलता है? एंटरप्रेन्योर्स को. ठीक है, प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव प्रॉफिट भी हो सकता है, पॉजिटिव प्रॉफिट भी हो सकता है, जीरो प्रॉफिट भी हो सकता है. ओके, मैं बताऊंगी, इसके ऊपर आऊंगी. जब हम एंटरप्रेन्योर चैप्टर पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे कि ये है क्या. यानी कि फैक्टर मार्केट बेसिकली होता क्या है और प्रोडक्ट मार्केट बेसिकली होता क्या है. हाउस होल्ड जो है यानी नॉर्मल पब्लिक जो है वो होती है एक्चुअली फैक्टर मार्केट, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप सप्लाई करती है बिजनेस को, और बिजनेस इन रिटर्न क्या देते हैं हाउस होल्ड्स को? वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर मार्केट. प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है? ऑफ कोर्स बिजनेस हमें लेकर के, हाउस होल्ड से लेकर के क्या बनाती है? प्रोड्यूस करती है चीजों को, बी इट गुड्स और सर्विसेज, व्हाटएवर. We households cannot produce everything. That means हमें बाहर जाना पड़ता है चीजों को अवेल करने के लिए, चीजों को खरीदने के लिए. We go to product market, right? Product market कौन एक्चुअली प्रोवाइड करता है? बिजनेस हाउसेस प्रोडक्ट मार्केट में सामान डालती है. We go and we purchase things, जिसको बिजनेस वाले लोग सेल्स के नाम से जानते हैं. यानी कि हम लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं उनसे ये सारा सामान प्रोडक्ट मार्केट में, राइट. एंड what we get in return? We get goods and services in return. And what do the business enterprises get? They get sales. उन्हें sales मिलता है, right?
and what do we get? We get goods and services. So factor market and product market is very simple. Factor market में businesses हमें देते हैं wages, interest, profits and हमसे क्या लेते हैं बदले में? land, labor, capital, entrepreneurship. Household business से क्या लेता है? goods and services and बदले में business को क्या मिलता है? उनको sale मिलता है, which is the only factor जिससे वो कमाते हैं. बाकी जितने भी factors होते हैं उनकी कंपनी में, business organization में, उन सब में उनके पैसे लगते हैं. बस एकमात्र revenue generate होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ sale से होता है. Now type clearly if you understood or not. Type, quick. Great, fine. So households and business का आपको factor market और product market का sequence समझ आ गया. इतना समझ आ गया होगा आपको factor market में क्या मिलता है और क्या दिया जाता है and product market में क्या मिलता है और क्या दिया जाता है. Because in any market, दो लोग तो होते ही हैं, okay? एक जो लेता है और एक जो देता है. आपको समझ आ गया होगा factor market में who is the buyer and seller and who, in product market who is the buyer and seller. I hope आपको समझ आ गया होगा. ये आप पेंसिल से लिख सकते हो. ऐसे तो आपके लिए क्लियर चार्ट है यहाँ पे, बट स्टिल एनीवेज. सो आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द एजेंडा. किस टॉपिक के बारे में अब हम बात करेंगे. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी आर गोना डिस्कस इज प्रोडक्शन मैकेनिज्म. नाउ इन प्रोडक्शन मैकेनिज्म बेसिकली प्रोडक्शन है क्या? अगर मैं किसी से भी कुछ भी पूछूं कि बेटा प्रोडक्शन क्या होता है, क्या बोलेंगे? If I ask you what is production, I'm giving you 10 seconds. Type. What do you think is production? People who are seeing this in YouTube, you can also write it down in a piece of paper. What is production? कोई आपको जज नहीं कर रहा है. Giving you 10 seconds. Quickly type. What is production? Quickly. Yes, great. Providing goods and services. Okay. To manufacture. Okay. Not bad, not bad. Producing. Okay, fine. Now, if you see production, अगर आप production को देखो, तो actually production क्या है पता? It is creating something, right? किसी भी चीज को create करना, right? What we would say in a simple language is production of various goods and services in the economy is production mechanism. Production of various goods and services, अलग-अलग goods and services को produce करना किसी भी economy में, वो production mechanism. I'm asking what is production? Can I say creation of utility? I would say na creation of utility is production. Sorry for that background noise. Creation of utility, something जो किसी के अंदर creativity ले आए, creation हो किसी भी चीज का, उसको हम लोग production बोल सकते हैं, right? अब देखो production mechanism के दो different formats थे. एक था traditional, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मटीरियल गुड्स को कंसीडर किया जाता था. मटीरियल गुड्स एज इन द गुड्स विच वी कैन टच, ओके, फील, सी, दोज वर द मटीरियल गुड्स. एंड ट्रेडिशनली प्रोडक्शन हम उन मटीरियल गुड्स का ही करते थे. मॉडर्न अप्रोच में इफ यू सी क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी with any activity we get in return this pisa money, that is production. If I am providing services, that is also production because I'm making something out of it, right? Doctors, teachers, engineers, all these things, creating the value in them is also economic activity and is also a production mechanism, right? So अगर आप प्रोडक्शन का एक और बेसिक एग्जांपल दो तो आप बोल सकते हो कि फॉर्म को चेंज करना, किसी भी चीज का फॉर्म चेंज करना कैन बी प्रोडक्शन.
रॉ मटेरियल है, और फाइनली उसको आप फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट इज प्रोडक्शन। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है, दैट इज प्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच सम मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म करना इज ऑल्सो प्रोडक्शन, एडिंग सम यूटिलिटी टू इट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जो पूर्वजों से चलते आ रहा है इज लकड़ी। अगर मैं आपको वुड दे दूं तो वो आपके लिए किसी भी काम का नहीं होगा। अगर मैं वो कारपेंटर के हाथ में दूं तो वो उससे एक चेयर या फर्नीचर बनाएगा विच यू विल परचेज। यानी एक वुड से एक फर्नीचर तक का, वुड से एक टेबल तक का जो सफर है, चेंज हो रहा है ना फॉर्म, है तो दोनों भी वुड ही, बट ये रॉ फॉर्म में था और ये फिनिश्ड फॉर्म में है। आपके लिए फिनिश्ड फॉर्म वाला काम का है। डन। Now, what is input or what is factors of production? You can see, you can clearly see on the screen what you can see. Whatever is used in the production process में जिस भी चीज का जरूरत होता है to form the finished product, production process में जिस भी चीज का जरूरत होता है to form finished product, it is called as input या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि लैंड आपको दिख रहा है, जरूरत पड़ता है भाई, बिल्कुल। मैम, एग्रीकल्चर के लिए क्यों फैक्ट्री हवा पे खड़े करोगे क्या? इतना टेक्नोलॉजी तो है नहीं हमारा, राइट। यानी यू कैन नॉट लाइक वो स्काई ड्राइव, व्हाट इज द गेम्स नेम, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर। ए गेम है स्काई ट्रैक, हवा में चलता है, बट हमारा अभी तक वैसा कुछ है नहीं। तो लैंड लैंड है, ओके फाइन। देन वी हैव लेबर। नाउ whatever is used in the production, कुछ भी जो आप किसी भी चीज से जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप जिस भी चीज को लगाते हो रॉ फॉर्म में, बाद में उसका फिनिश्ड फॉर्म निकल रहा है, उसको प्रोडक्शन ही बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने लैंड दिया, आसमान में तो होगा नहीं। तो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, फैक्ट्री बना रहे हो, ऑफिस बना रहे हो, आपको लैंड तो जरूर लगेगा, राइट। हो गया। मैम, लैंड के बदले क्या देते हैं हम, सोचो। लीज पे होता है लैंड, खरीदते हो आप लैंड, रेंट पे होता है लैंड, बहुत सारी चीजें। उसके बाद लेबर। अब देखो, लैंड खड़ा कर दो, बड़े बड़े मशीन्स रख दो, बट लेबरर्स नहीं रहेंगे, अगर ह्यूमन फोर्स नहीं रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स, कुछ नहीं होने वाला है। वी नीड पीपल, okay, and India being such a populated country, you get such cheap labor here, labor intensive productions यहाँ पे बहुत तगड़े चलते हैं। देन वी हैव कैपिटल। अब देखो, पुराना जमाना तो है नहीं कि सब हम लोग सब्सटेंशियल फार्मिंग करके निकल जाएंगे, छोटा सा फार्मिंग करके निकल जाएंगे, या छोटा सा अपना सेल्फ मेड बिजनेस कर देंगे। आज का मार्केट बहुत बड़ा है, प्रॉफिट बहुत बड़ा है, इसके लिए वी नीड कैपिटल, ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख ही रहे होंगे, राइट। सो वी नीड कैपिटल, मशीनरी हो गए, बड़े बड़े गाड़ियां हो गई, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, फैक्ट्रीज, ऑल दीज थिंग्स आर कैपिटल। कैपिटल के लिए भी वी नीड टू प्रोवाइड, यू नो, रेंट, लोन, इंटरेस्ट, ये सब कुछ लगता है। एंड देन वी हैव एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर। एक बिजनेस ऐसे कैसे चल जाएगा, किसी के भी हाथ में पैसे दे देंगे तो कोई भी कुछ भी कर लेगा क्या? नहीं, होना जरूरी है। सबके पास अपॉर्चुनिटीज होते हैं, पर सबके पास दिमाग नहीं होता। पैसे भी सबके पास आ जाते, पर दिमाग, आइडिया, नॉलेज, वेरिएशन सबके पास नहीं होता। ये जिसके पास होता है वो मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो हर एक चीज को देखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को बदले में क्या मिलता है? वो क्या लगाते हैं? अपना आइडिया लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं। मैम, उनको क्या मिलता है बदले में? उनको लेफ्ट ओवर प्रॉफिट मिलता है, तो लेफ्ट ओवर पैसे, मतलब सबको देने के बाद जो बच जाएगा, दे विल गेट दैट। और वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है जीरो हो, सबको देने के बाद कुछ ना बचे। कभी कभी हो सकता है उनको अपने पॉकेट से देना पड़े, दैट इज लॉस। और कभी कभी होता है, कभी क्या, मोस्टली होता है व्हेन दे अर्न प्रॉफिट, ओके, विच इज पॉजिटिव इन नेचर। नाउ, व्हाट इज यूटिलिटी? आई होप आपको दिख रहा होगा। यूटिलिटी के लिए एक बेसिक चीज मैं यहाँ दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे जूम इन करती हूँ इस चीज को, थोड़ा सा आपको और क्लियर पिक्चर मिले। फाइन, कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन एवरीवन? स्नैप ले लो इसका। इकोनॉमिक यूटिलिटी refers to the usefulness or value that consumers experience from a product or service, and can be judged based on the form, time, place, and possession.
These factors help in assessing the purchase decisions and drivers behind those decisions. ड्राइवर्स का मतलब मैं बताती हूँ, वो ड्राइवर ड्राइवर अंकल वाले ड्राइवर नहीं। देखो यूटिलिटी बेसिकली होता है यूजफुलनेस। पता है आपको यूटिलिटी अलग अलग प्रोडक्ट्स का भी मेजर होता है इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, रुपी, पैसा, ये सब यूनिट्स होते हैं। वैसे ही किसी भी प्रोडक्ट का यूजफुलनेस का भी मेजरमेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि जिसे हमें किस ऑर्डर में मेजर करते हैं, इट्स यूटिल्स। ओके, ये आप आगे पढ़ोगे कि किस स्केल पे होता है, क्या क्या चीजें होती है, वो आप पढ़ोगे। उससे पहले यूटिलिटी का इतना मतलब समझ लो, किसी भी प्रोडक्ट का यूजफुलनेस, ठीक है, जो कि कंज्यूमर जब यूज करे तो उसको फील हो कि हाँ दैट प्रोडक्ट इज यूजफुल, किस बेसिस पे, कितना ज्यादा, ठीक है। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, फॉर्म्स है, जो आप अभी पढ़ोगे। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे कि 4 टाइप्स, देर आर 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जो आपके सिलेबस में है, आईसीएसई के सिलेबस में होता है। फॉर्म, टाइम, प्लेस एंड सर्विस। Now, the first one being form utility. Now, what is form utility? देखो आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा। जब कोई यूटिलिटी ना अपना फॉर्म, अपना जो क्या बोलते हैं, ओरिजिन चेंज कर लेती है, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले वुड का, यहाँ पे भी उसी टाइप का एग्जांपल है, ठीक है। व्हेन यूटिलिटी इन गुड्स इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म, जैसे वो वुड का कोई अस्तित्व नहीं था आपके लिए, आप मतलब जब तक वो फर्नीचर नहीं बना था आपके लिए उसका कोई मतलब नहीं था, पर सेम चीज का वैल्यू किसके लिए था, कारपेंटर के लिए, क्योंकि वो उसको चेंज करेगा एंड उसको कंसिडरेशन उसी चेंज के अकॉर्डिंग मिलेगा। बट आप और मेरे लिए उस लकड़ी का कोई वैल्यू नहीं है, उससे बने हुए प्रोडक्ट से हमें हमें मतलब है, यानी किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, फाइन। तो फॉर्म चेंज करने से ही यूटिलिटी एड ऑन हो जाती है अपने आप। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, नहीं है ना, हमें नहीं, अभी रास्ते में जाएंगे तो हमें क्या पोटैटो की जरूरत है? ऑफ कोर्स नॉट, वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव, वी वोंट ईट पोटैटोज। What will we find? Chips. Simple. Right? Changing raw material into usable goods. Right? ताकि सामने वाले को, और उसको असेंबल करके असेंबल भी कर दिया जाता है ताकि सामने वाले के लिए वो यूजफुल हो। कार का अलग अलग पार्ट्स मेरे लिए कोई यूजफुलनेस उसके लिए है ही नहीं, हाँ, पर उसको अगर हम एक साथ ले आए देन इट्स वेरी यूजफुल। देन वी हैव प्लेस यूटिलिटी। एक सामान जो आज के दिन पे यहाँ मिल रहा है, वो सामान क्या किसी देवघर में बैठे हुए, झारखंड में बैठे हुए इंसान के लिए यूजफुल होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि वो सामान तो यहाँ है। पर अगर वही सामान देवघर चला जाए तो क्या उस इंसान के लिए यूजफुल होगा? द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स, राइट। समझो मेरी बात को, पहले के टाइम पे हम सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते थे, बाहर के जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सिर्फ हम देख सकते थे, ठीक है, समझ सकते थे, सुन सकते थे, पर हमारे लिए उसका कोई यूज था ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। उसके बाद जो बाहर चीज है, ओ आई लाइक इट, देन आई कैन परचेज, इट्स वेरी सिंपल, राइट। सो हैविंग अ प्रोडक्ट वेयर कस्टमर्स कैन बाय इट, राइट, कहीं से भी खरीद सके। बिजनेस स्टडी कंज्यूमर शॉपिंग हैबिट्स to determine the best sales outlets for their products. Outlet include catalogs, internet, retail stores, कहीं से भी, which product I like, I can purchase it. It's what? It's place utility, जिसकी वजह से तुमको क्या लगता है, मार्केट का स्कोप बढ़ेगा घटेगा? कॉस्ट बढ़ेगा। Then we have time utility. टिंग 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 टिंग। टाइम यूटिलिटी सोच के देखो ना, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स जो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स क्या होते हैं आपके उगते वगैरह हैं, ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंस इज बाकी के 6 मंथ वो नहीं उगते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो 6 महीने उगा है वो सामान उसे खा के खत्म करना है, या फिर उसमें थोड़ा 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 सेव करना है ताकि नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए वही प्रोडक्ट्स काम आ सके। ऑफ कोर्स द सेकंड वन, राइट। उसी तरीके से और भी प्रोडक्ट्स की बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, having a product available at a certain time in a year या convenient time of a day, we need to what, save it up for future reference, for future use। एग्जाम्पल दिया है कि रिटेलर्स ज्यादा करके क्या करते हैं, बैकपैक समर के टाइम पे बनाते हैं, राइट। जैसे ही
retailers offer large supply of backpacks in the late summer, near the beginning of the school year. क्यों? क्योंकि पूरे साल वो बनता है, but किस टाइम पे ज्यादा सप्लाई होता है मार्केट में? ऑफ कोर्स स्कूल टाइम पे. देन स्वेटर्स का भी सेम चीज होता है, राखी का सेम चीज होता है, जितने सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी सेम चीज होता है. अंडरस्टैंडिंग? द वेरी लास्ट थिंग इज सर्विस यूटिलिटी. ओके, और भी यूटिलिटीज होते हैं जैसे पोजेशन एंड एवरीथिंग. आई एम गोना टेल यू अबाउट सर्विस फर्स्ट. नाउ व्हाट इज सर्विस यूटिलिटी? अब देखो, इतने सारे जो आप पढ़ रहे थे वो कहीं ना कहीं मटेरियल से रिलेटेड था, राइट? अब जो आप पढ़ रहे हो इट्स रिलेटेड टू इनटैंजिबल थिंग व्हिच यू कैन नॉट टच और फील. नाउ दीज थिंग्स आर व्हाट आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी सर्विस की जरूरत हो सकती है, बी ए डॉक्टर, टीचर, engineer, trader. These services which a person possess in themselves and they give it to someone is what? Service utility. For this, people always need knowledge in their respective fields and everything. So yeah, that's also production in themselves, and then they're producing services by their own. That was it. Now, as I already told you people, that after this video, you are gonna completely know what production mechanism is, what input or factor of production is, what utility and its types are. Okay. Next, if you really want to continue the classes, you can surely, you know what the contact details are, you can just ask it to me. And the people who are seeing it on YouTube, the continuation videos would surely come. Do let me know. Okay, now that's it from my side.